Hello, welcome to accountancy class. Today's topic is dissolution of a partnership form, and we are going to solve question number 45 of the new book, T.S. Grewal 2020-21 edition. Now, first of all, I am going to discuss the question for you. If you get the question, then you will easily understand the solution also. In this question, you have been given three partners A, B and C. Profit sharing ratio among them is 2:1:1. Sundry assets you have been given, total sundry assets rupees 88,000, which includes cash of rupees 5,000. Means if you exclude the cash, then the remaining sundry assets will be 83,000. Look at here again, 88,000 including cash. 5,000. After that, the further informations you have been given related to the realization of the assets. That is, assets were realized for rupees 80,000, including rupees 4,000 for unrecorded assets. Okay. Next, payment of contingent liabilities rupees 8,000, capitals of rupees 20,000 of each partner. These are the informations which you have been given in the question, and after all, finally read the last line which you are required to prepare. First, realization account, capital account and the cash account. First of all, we should draw the format according to the requirement of the question, that is realization account, particulars amount, partners capital account, particulars amount. Here, instead of amount, we have written the name of the partners A, B, C, so that in a one format we can prepare three accounts, three capital accounts of A, B and C. After that, cash account. Now, look at here. It is written here that some assets are there and capitals. Okay, we are going to prepare the working notes, and in the working notes, prepare memorandum of balance sheet. Means balance sheet you are going to prepare, in which based on accounting equation you will calculate the sundry liabilities. In the question you have been given total assets of rupees 88,000. Look at here, total assets 88,000 is the total. And it was written that including cash. So write separately here cash 5,000 and sundry assets 83,000. Because 88,000 includes rupees 5,000, so balance is 83,000. From here, from the question, write the capital of each partner 20. So in the liability side, capital of A, B and C 20 total 60,000. Now you can see that the total of asset side is 88,000, which is always equal to the total of liabilities. So it should also be 88,000. So from 88,000 minus capital 60,000, it will be the balancing figure to calculate sundry liabilities. You can write here balancing figure. Now the balancing figure is here of rupees 28,000. Now let's start the solution on the basis of this working note and the informations given in the question. First of all, you are going to prepare the realization account. Now see here, sundry assets are written in the debit side of the realization account. Check here. In bracket you can write. Now check here, liabilities. Liabilities can be written here. Liabilities are written in the credit side of the realization account. To close the liabilities account, in bracket now write here working note 1. वर्किंग नोट 1. आपने असेट्स के बैलेंसेस जानते होंगे, डेबिट होते हैं. जब इन अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है असेट्स को, तो क्रेडिट करते हैं अकाउंट्स, असेट अकाउंट को क्रेडिट. तो डेबिट क्या करेंगे, रिलायशन अकाउंट. जो एंट्री बनती है रिलायशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स. इसी तरीके से लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, इनको डेबिट करके क्लोज किया जाता है. एंट्री बनती है सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो रिलायशन के क्रेडिट में लिख दिया आपने सन्ड्री लायबिलिटीज. तो इस तरीके से आप अमाउंट ट्रांसफर कर दिया. अब देखिए कैश.
आप कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो बैलेंस जो भी दिया हुआ है कैश का आपने लिखना है कैश के डेबिट साइड में। असेट है इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होते हैं, ये आपने लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन और ब्रॉट फॉरवर्ड, या ओपनिंग बैलेंस आप यहां से लिख सकते हैं। आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो यहां से बैलेंस शीट उठाएं कैपिटल के, ए की कैपिटल, बी कैपिटल और सी की कैपिटल, तीनों की कैपिटल आपने लिख दी बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड या ओपनिंग बैलेंस के नाम से। तो आपने जो भी बैलेंस शीट जो आपने बनाई है उसकी इंफॉर्मेशन सारी लिख दी है। असेट्स डेबिट साइड लिख दी, लायबिलिटीज क्रेडिट साइड रिलेशन के, कैपिटल के बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए क्रेडिट साइड, क्योंकि लायबिलिटीज के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं, और असेट कैश का बैलेंस आपने कैश के डेबिट में लिख दिया। अब आप आ जाते हैं अपनी क्वेश्चन की अदर इंफॉर्मेशन पर जो दी गई है। कहते हैं असेट्स वर रियलाइज्ड 80,000 इंक्लूडिंग 4,000 फॉर अनरिकॉर्डेड असेट्स। देखिए असेट्स हमारे पास 83,000 की थी, आप कहते हैं 4,000 की अनरिकॉर्डेड भी हो गई तो 87। हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने की थी कितने की है, अनरिकॉर्डेड कितनी कितनी, इट डज नॉट मीन, simply we want to know that what amount we are receiving by realizing the assets, कि कितना कैश टोटल फाइनली आ रहा है। तो कैश आपका 80,000 रिसीव हो रहा है टोटल कुछ भी करके। तो कैश अकाउंट डेबिट, जब फॉर्म में कैश बढ़ता है तो डेबिट करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जर्नल एंट्री बन गई। तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है, यहाँ देखिए कैश अकाउंट डेबिट है टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप असेट्स रियलाइज्ड 80,000 वहां से लिख दिया। तो जर्नल एंट्री फिर से कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन मींस रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो असेट्स यहां रियलाइज हुई क्रेडिट साइड, और आप लिख सकते हैं यहां पर असेट्स। देखिए यहाँ असेट्स अकाउंट गलती से भी नहीं लिखना, क्योंकि कोई अकाउंट आप खोलना नहीं है, सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। आपके सामने जो 3 अकाउंट्स नजर आ रहे हैं खुले हुए, इन्हीं के बेस पर आपस में जर्नल एंट्रीज बननी है, इन्हीं का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना है, ताकि ये आपस में एडजस्ट होते होते क्लोज हो जाए। तो आपका कैश अकाउंट डेबिट हुआ रियलाइजेशन से, और रियलाइजेशन हो गया क्रेडिट कैश से। आफ्टर दैट पेमेंट ऑफ कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज 8,000 का पेमेंट होना है। साथ के साथ आपकी जो लायबिलिटी ये थी 28,000, इसका भी पेमेंट किया जाएगा। देखो आप यहाँ लायबिलिटीज का जो आपके बैलेंस शीट फिगर करके आई थी, यहाँ से 28,000 बुक वैल्यू पर पेमेंट किया जाएगा, चाहे एडजस्टमेंट हो इससे रिलेटेड या ना हो, और कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज 8,000। तो टोटल पेमेंट होगा ये। जर्नल एंट्री क्या बनती है पेमेंट होने पर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश कम हो जाएगा जब पेमेंट किया जाएगा तो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और आपने ब्रैकेट में लिख दिया सन्ड्री लायबिलिटीज और कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, और साथ के साथ कैश को क्रेडिट कर दिया, मींस कम कर दिया बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 36,000। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप लायबिलिटीज का पेमेंट किया है, LIP मैंने डॉट लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया, लायबिलिटीज का पेमेंट हो जाएगा। अब आपकी इसमें कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं रही, सारा डिटेल जो थी आपने फिल कर दी। अब लास्ट स्टेप हमारा चलता है क्वेश्चन का एंड करना, अकाउंट्स को क्लोज करना, क्लोजिंग। इसका डेबिट साइड का टोटल क्या 1,19,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। डेबिट के टोटल से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस किया तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर करके आई, लिख देते हैं ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। कितने हैं 11,000, क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा था इसलिए लॉस कहलाया, और लॉस को ट्रांसफर किया बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। किसके कैपिटल अकाउंट? A, B और C। 11,000 का लॉस A, B, C की कैपिटल में ट्रांसफर किया, और गिवन रेशियो में जो क्वेश्चन में रेशियो दिया था 2:1:1, तो इससे 5,500 2,750 2,750 इनकी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा। जब कैपिटल्स कम होती है तो जर्नल एंट्री बनती है A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो रियलाइजेशन को क्रेडिट है, लेकिन अब इनकी कैपिटल को भी डेबिट कर दिया जाए। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ब्रैकेट में आप यहां लिख सकते हैं लॉस
लॉस, ये जो लॉस है इससे इन पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट मींस कम कर दी। अब आपने इसका क्रेडिट माइनस डेबिट किया, बैलेंस बचता है 14,500 और इसका क्रेडिट 20,000 माइनस डेबिट किया 17,250, 20,000 माइनस 2,750, तो ये पेमेंट आ गया। देखिए अभी ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये जो आपने क्रेडिट माइनस डेबिट का बैलेंस किया है इससे अब तक बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता था, बैलेंस कैरी कि आपने कैरी कर दिया नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए, लेकिन अकाउंट्स अब आपके क्लोज हो रहे हैं तो इनका बैलेंसिंग फिगर ये बैंक में आएगा कि बैंक से पेमेंट कर देना है। जर्नल एंट्री बनती है A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit to bank account, means बैंक से फाइनली पेमेंट कर दिया और इस तरीके से ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं। अब जब आप देख रहे हैं टू बैंक अकाउंट मींस बैंक क्रेडिट हुआ तो साथ के साथ बैंक को या कैश अकाउंट आप बना रहे हैं तो कैश को मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, इसको साथ के साथ माइनस मींस क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आपने एंट्री बनाई A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit to bank account मींस A की कैपिटल, B की कैपिटल और C की कैपिटल का पेमेंट हो गया और पेमेंट होने से जो हमारा कैश अब बैंक है वो माइनस हो गया। और देखिए ये अकाउंट क्लोज हो चुका था, ये अकाउंट क्लोज हो चुका था। आपको ये मालूम नहीं होता कि आपका जो सॉल्यूशन है सारा सही है या गलत है, क्या मिस्टेक है, कि रिलेशन का आंसर ठीक है या नहीं, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मैच कर गया नहीं कर गया, क्या पेमेंट करना है, कुछ मालूम नहीं होता। तो सिंपली बताएं, इसमें फाइनल में लास्ट में आप कैश या बैंक अकाउंट बनाते हो, ठीक है। कैश अकाउंट में यदि आप देखते हो कि आपकी पॉकेट में कुछ अमाउंट था, यहाँ पर 5,000 था और कुछ और आ गया जैसे 80, तो टोटल कैश हो गया 85। जितना आपके पास बैलेंस है कैश या बैंक का उससे ना तो कम ना ही ज्यादा पेमेंट हो पाएगा, मींस जो इसीलिए हम कह सकते हैं जो पेमेंट साइड का टोटल है वो भी सेम आना चाहिए, यानी बैंक का डेबिट और बैंक का क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। यदि दोनों इक्वल आते हैं तो सारा सॉल्यूशन सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। तो दोनों टोटल आपके इक्वल हो गए। I hope that you have got the concept as well as the question. If you have any doubt, you can leave a WhatsApp message or can leave a comment so that accordingly I can provide you the next video. Give a thumbs up to like the video and subscribe the channel. Thanks. Have a nice day.